Hello and welcome. It's that time of the day again where we bring you experts in the field of medicine to answer all your queries, any doubts that you might have about the prevailing coronavirus pandemic situation, any medical queries that you might have related to COVID-19 or even otherwise can and will be answered over here, because that's what this show is for. It's on till 3 p.m. Our phone lines are open. You can also connect with us on Facebook and Twitter. I'm Gautam Roy and with me is Tejinder Singh. शुक्रिया गौतम। बिल्कुल आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोविड से जुड़े हुए हों, अपनी सेहत को लेकर, आप उन सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे जो आपके उन सवालों के जवाब देंगे। हम सब जानते हैं कि कोविड को लेकर पूरी दुनिया में परेशानी इस वक्त चल रही है। हालांकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है, लेकिन उस पर भी काम जोरों से चल रहा है। लेकिन इसके खिलाफ बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तो आपके जो भी सवाल हैं, आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं उन पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। और गौतम, आज हमारे साथ कौन से डॉक्टर्स होंगे? Tejinder, फिलहाल I think we have Geeta Kampani, Dr. Geeta Kampani with us. She is consultant professor at Safdarjung Hospital. Welcome to Dr. Speak, Dr. Kampani. Let me open up the show and ask you to begin with, what is your assessment of the COVID-19 situation in the country at the moment? On one hand, we see the recovery rate improving steadily. Pretty soon it will cross 61%. But we also have active cases jumping up every day. Yesterday was the highest ever jump, 24-hour jump for active cases, 22,771. So what do you make of this situation in the first place? See, definitely after lockdown has opened, the number of cases is rising. There's no doubt. This is, and because the number of asymptomatic and mild cases is much more, so definitely the rate of infection is increasing. To an extent, it is because of increased testing also. We are detecting many more cases who are asymptomatic, who otherwise would not have been detected, like patients who are asymptomatic but would have come in contact with some other patient unknowingly or knowingly. So these patients, because of increased testing, are being detected. To an extent, it has also happened because people thought that once lockdown has opened, so the social distancing and the wearing of masks is not necessary, which was not being observed in some cases. So that also may have contributed. But I think the main reason for the increased number of cases is increased testing, and also because of, definitely because of spread of infection. There is a community spread right now. जी डॉक्टर गीता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अनुपम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुपम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जैसे हमने बातचीत शुरू की कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता सबको है कि बाहर निकलना है, काम पर भी जाना है, सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अब मानसून का समय आ रहा है, बारिशें होंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक और वक्त आ जाता है ऐसा जब लोगों को हल्की फुल्की बीमारियां, खांसी, जुकाम आने लगता है। ऐसे में लोगों के डर में मन में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि ये कौन सा फीवर है, क्या ये कोविड है या कोविड नहीं है। इसको लेकर बहुत सी शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में। इसके बारे में डॉक्टर साहब कैसे कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से बहुत ही ठीक सवाल आपने पूछा है। ऐसा है, इस समय मानसून के साथ, बारिश के साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। वाटर एंड बॉर्न डिजीज हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये सब भी आ जाती हैं। और हम लोग आजकल अस्पताल में देख भी रहे हैं, डेंगू है, टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये सारी बीमारियां जो हैं अपने नियम से आ रही हैं। और कोविड एक नई बीमारी जुड़ गई है हमारे खाते में, उसको भी हम लोग देखभाल कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उसके अच्छे से कर रहे हैं। तो ये जो है चीज बहुत जरूरी है। और कोरोना वायरस जैसे बीमारी कर रहा है, तो शुरुआती जो इनके लक्षण हैं वो तो आम तौर से जैसे वायरल बुखार होता है वैसे ही हैं। एक आधी चीजें हैं कि अगर आपको स्वाद बदला हुआ लगता है, नाक की सूंघने की पावर जो है, ताकत जो है वो कम हो जाती है, तो वो चीजें काफी स्पेसिफिक हैं जो कि इसी में होती हैं कोरोना वायरस डिजीज में।
बाकी जो है बाकी बीमारियों से भिन्न करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण जो है किसी आपको संक्रमित मरीज से ही होगा, और अगर घर में कोई भी आदमी है जो कि बीमार है कोरोना वायरस से, अगर आप उसके कांटेक्ट में आए हैं या उसकी केयर कर रहे हैं और आपसे लापरवाही हो गई है कि अगर आप अपना हाथ नहीं धो पा रहे हैं या मास्क नहीं पहने हुए हैं या उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें आपने बिना अपने हाथ धोए जो आपने इस्तेमाल की हैं, या वो खांस रहा है तो आप उसके सामने थे, तो उन सब संभावना से ही कोरोना वायरस आप तक पहुंचने की चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर आप स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि अस्पताल में हैं और काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस मरीज भी वहां पे उनको देखा जा रहा है, उनका ध्यान दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों के बिना कोरोना वायरस का आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप, जैसा कि सरकार ने कहा है, जैसा आप डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पे कपड़ा बांध करके रखें जब भी बाहर जाएं और अपने हाथ निरंतर धोते रहें, तो अगर वो है तो कोरोना वायरस आपको आसानी से आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन हाँ, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, या टाइफाइड जैसे कि अगर पानी अगर साफ नहीं आ रहा है या खाना आपने जो है संक्रमित खाया है तो उससे फैलने वाली बीमारियां, तो ये तो जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी और चल भी रही हैं, इसमें कोई बात नहीं है। Right. Doctor, we have in fact a caller, we have some queries coming in on Facebook right now. Dr. Kampani, if I could ask you, we have Dalbir Singh asking that how would we, and is it possible for us to get to know if we got coronavirus but we were asymptomatic and it has now been we've recovered from it, but how can we even post facto get to know whether we had coronavirus or not? See, firstly, I would like to state that if you are asymptomatic or you are mild, and if you feel that you had coronavirus infection, like you have come in contact with a patient, then or you had some fever, or maybe you are still asymptomatic, if you are very keen on getting tested, the only way out is to see the antibody status. The antibodies appear usually after the 10th day. So 10th to 14th day, we have antibodies which appear in the serum. That is the basis that has formed the basis of plasma therapy also, which we have given, that antibodies are present in the serum. We have 3 types of tests for coronavirus. One is the RT-PCR, which we have been doing from the beginning, RT-PCR or the CB-NAT, which we have been doing, which detects the virus directly. Then is the antigen test, which is being done in containment zones and for surveillance, and antibody. Antibody appears after about 10 to 15 days. So if there are antibodies in your plasma, that means at some point of time you have contacted the infection and now you are immune to the virus. How long that immunity is going to last, that nobody can say. How long these antibodies are going to last in the serum, nobody can say. This only further as we evolve with the virus we will come to know. जी, इस सवाल को आगे लेके जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, प्रशांत गौंते, उन्होंने फेसबुक के जरिए ये सवाल किया है। डॉक्टर अनुपम, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसके जवाब के लिए कि कोविड-19 से वो कहते हैं कि लंग्स तो इफेक्ट होते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन और कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जो वल्नरेबल हैं कोविड-19 को? देखिए, बहुत ही आसान सवाल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन ये है कि कोविड-19 जो इसका संक्रमण का रास्ता है वो है कि सांस की नलियों से जाता है, तो फेफड़ा इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन हाँ, इस पे आमतौर पे और भी कई जो शरीर के अंग हैं उन पे भी असर पड़ता है। दिमाग से शुरुआत करें तो दिमाग है, कई हमारे पेशेंट्स हैं जिनमें लेट थोड़ी सी हमें देखा जा रहा है कि दिक्कत हो रही है, जो कि दिल के दिक्कत उन्हें बाद में हो रही है, तो दिल के मरीजों को भी दिक्कत है इसमें, और दिल पे भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जब संक्रमण ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा गंभीर रूप में होता है कोरोना वायरस से ही, तो कोविड के पेशेंट्स में गुर्दे पे और जिगर पे भी इसका असर पड़ रहा है। और एक जो है हम लोगों ने जो हमारे अस्पताल में देखा जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स में, बल्कि कई पेशेंट्स में अमाइलेज और लाइपेज लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि दर्शाते हैं कि थोड़ा पैंक्रियास पे भी असर पड़ रहा है। इसीलिए शुगर का कंट्रोल भी इन लोगों का थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो कई चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेफड़ों को जो है असर करता है, लेकिन पूरा ही जो शरीर है उसके विभिन्न भागों में इसका असर रहता है और उससे दिक्कत होती है। राइट, बिकॉज ऐसा भी है क्या डॉक्टर साहब, if I could ask Dr. Kampani to come in on this. Dr. Kampani,
does it also depend on what age group you are as to how the symptoms manifest? Because it's also being said in certain studies that the symptoms from children could be different. They could even have diarrhea, and people with comorbidities have more intense and different sort of symptoms. Yeah, definitely. The people with comorbidities who are elderly, they have a rapid spread. They have a tendency that same infection tends to have a rapid spread, and they can have they can go into septicemia. The lung involvement is much higher, and they can go into complications. That is the main reason why we say that the infection is dangerous in elderly individuals with comorbidities, because it is not that there is a different type of virus that is infecting them. The same virus infects them, but the spread of infection into the lungs, bilateral involvement of both the lungs with pneumonia, spread of infection into the various other organs, septicemia, that is infection into the bloodstream, viremia, what we will call, DIC, these all complications are more in elderly. डॉक्टर गीता, आप पिछले सवाल में जब आप जवाब दे रहे थे, उसी से जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से ये सिम्टम्स जैसे जैसे नज़र आते हैं, जब कोई कोरोना पेशेंट ठीक होकर वापस आ जाता है, उससे रिलेटेड आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या उसको दोबारा कोरोना होने के चांसेस हैं, या एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, उसको कोरोना नहीं हो सकता, या फिर उसके आसपास के लोग हैं, क्या उनको किसी तरह की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? देखिए, ये वायरस एक नई बीमारी है। इमीडिएटली तो डेफिनेटली वो ठीक हो गया है, और जब अभी जैसे आज ही जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी दी है कि इंस्टेड ऑफ 17 डेज द होम आइसोलेशन हैज बीन डिक्रीज टू 10 डेज, तो कोई ऐसी एक बार वो ठीक हो जाता है, उसके बाद 10 दिन के बाद कोई आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। 7 डेज और आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन रखनी है, आइसोलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन रखनी है, थोड़ा जो बाकी लोग हैं वो थोड़े से केयरफुल हो सकते हैं फॉर अनदर 7 डेज कि कोई उनको इन्फेक्शन ना हो, थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन आइसोलेट करने की पेशेंट को और जरूरत नहीं है। और इमीडिएटली ये इम्यूनिटी डेफिनेटली कुछ महीने तो चलेगी, लेकिन कितने महीने चलेगी, कोई वायरस म्यूटेट करके नया फॉर्म लेगा, ये कह नहीं सकते, ये हमको टाइम ही बताएगा, but definitely कुछ महीने तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको रीइंफेक्शन होगी। Right. We have a caller joining us, Chandan from Gurgaon. Go ahead, Chandan, ask your question, please. Hello. Yes, go ahead, ask your question. सवाल करिए अपना. Suppose a person is 70 years old and he is diabetic and BP patient. If he is staying in a place like NCR, where more patients are there, he should stay in the same place, or he should shift to some small place where the COVID patients are lower. Should I take the question? Yes, I think he's asked. Did you get his question, Dr. Kampani? Yeah, I've got his question. See, there is no need to relocate to another place where a number of cases are less. I think rather it is more important for you, even if you have comorbidities, that you stay indoors, because relocation is going to involve coming outdoors, going to out of your house. It is more important for you that if you are having comorbidities, आप घर के अंदर रहिए, और अगर किसी और को घर में डेजिग्नेट करिए जो किसी काम प्रोक्योरमेंट करनी है या बाहर जाना है, कोई और आपके लिए बाहर जाके, अगर केसेस ज्यादा हैं तो बाहर जाके काम करें। आप जितना कम से कम हो सके बाहर जाइए, और जब बाहर जाते भी हैं तो मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और घर आके अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, और या धोइए, कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ को धोइए। ये ज्यादा जरूरी है, बजाय कि आप ये सोचिए कि आप रिलोकेट करेंगे इस वक्त। Right. I hope that answers your question. We have another query. In fact, Dr. Kampani, somebody is asking you if you could explain, what kind of a time lag could there be as far as the COVID-19 infection is concerned and the appearance of IgM and IgG antibodies.
See, IgM antibody is the early antibody which appears, but this also takes about 5 days to appear, at least 5 to 7 days. And IgG antibody is after recovery from infection. So this is the late antibody. It appears after 10 to 15 days of infection. So Okay. initially IgM antibody appears when acute infection is there, after about on the 5th to 7th day, and about 10 to 15 days later after infection, the IgG antibody appears. IgG antibody means the patient has had past infection with coronavirus. जी, और इस वक्त हमारे साथ पल्लवी जुड़ गई हैं नागपुर से। पल्लवी, आप सवाल पूछना चाहती हैं? अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ये सवाल, जैसे अभी कोरोना वायरस काफी फैला हुआ है और इसके सिम्टम्स शुरू में जो थे, सर्दी, खांसी, बुखार था, है ना, तो आगे चल के और इसके सिस्टम में और मतलब बढ़ावा हुआ है कि जैसे मसल्स पेन होती है, मसल्स अकड़ती है, तो ये सब भी इसमें कोरोना वायरस में इंक्लूड है? जी ऐसा होता है? जी, डॉक्टर अनुपम, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस एक साधारण वायरस की तरह आप समझिए और इससे खौफ नहीं इसका फैलाइए। ये जैसे कि वायरल डिजीज होते हैं तो नजला, जुकाम जैसे कि ऑर्डिनरी जुकाम वाले वायरसेस होते हैं, वैसे ही ये करता है। भूख कम हो जाना, आपको जो है इसमें बदन में दर्द होना, ये सब वायरल इलनेसेस में होना है। कुछ दिन आपको लेथार्जी रहती है, ताकत कम लगती है। वायरल इलनेस ठीक होने के बाद भी आपको 3-4 दिन तक या हफ्ते 10 दिन तक भी आपको कमजोरी रह सकती है। ये सभी वायरल डिजीज में होते हैं, लेकिन वायरल डिजीज का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मान लीजिए आपको वायरल डिजीज हुई, किसी को वो 2 दिन में जो है आराम से ठीक हो जाएगी, किसी को हफ्ता 10 दिन लग सकती है। और वो अपने जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसके हिसाब से और जो इन्फेक्टिव डोज है उसके हिसाब से ये सब चीजें होती हैं। तो इनमें ये सब प्रक्रिया नॉर्मल है। कोरोना वायरस में भी ये सब चीजें होती हैं। कुछ एक चीजें, सिर्फ प्रॉब्लम कोरोना वायरस के साथ ये है कि हाँ, कुछ लोगों में ये घातक हो रहा है जो कि ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है। तो उस मामले में हम इसको जो है फ्लू के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसलिए ये थोड़ा परेशानी वाली दिक्कत है। तो इसको जो है बचने के सुझाव हैं, जैसे कि हमेशा कह रहे हैं, तो अपना रखिए। जैसे कि लोग जो ठीक होके भी आ रहे हैं, तो मैं उसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि उनको अलग नहीं करें। बहुत खौफ फैला हुआ है। जो लोग वापस ठीक होकर के आ जाते हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वापस। तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार कोरोना वायरस हो गया इस मरीज को तो अभी हमेशा ही कोरोना वायरस से पीड़ित रहेगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वापस उनको सोसाइटी में करें। जैसा कि डॉक्टर गीता कंपानी ने कहा, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस चेंज कर दी है, कह रही है कि सिर्फ 10 दिन जो है अब उन्हें संक्रमित माना जाए। 10 दिन के बाद जिनको दिक्कत नहीं थी तो वो नॉर्मल आदमी की तरह रह सकते हैं और छुआछूत की दिक्कत नहीं करें उनके साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी मरीज ठीक हो जाता है उसको आप वापस अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करिए और कम से कम इन मरीजों को आप ज्यादा अच्छे से ट्रीट करिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि, जैसा कि अभी मिस्टर गौतम कह रहे थे, कि यही लोग जो है आगे चल करके प्लाज्मा देने की, और यही लोग हमारे लिए एंटीबॉडीज टेस्टिंग में भी ये पता चलेगा कब कौन सी एंटीबॉडीज डेवलप होती है, कब कौन सी एंटीबॉडीज कितनी लेवल है उसका जो प्रोटेक्शन हमें प्रदान करती है। तो ये लोग ही जो है हमें बता रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जिससे हम बाकी जो नए मरीज हैं उनको हम और चीजें दे पा रहे हैं। तो ये जो है बहुत that is something that should be borne in mind by everyone, the entire society. We have more queries coming in on our Facebook live stream. We have Aradhya Malik who's asking, I live in an apartment. The residents above my unit are under 14 days of quarantine. We spend time in our balcony for some work which is just below theirs. What are the general precautions we have to take, keeping this in mind, since we are senior citizens aged 63 and 57? This is a query from Aradhya Malik in Bengaluru. Dr. Kampani, would you like to respond to that? See, the precautions they have to take remain the same. The virus, remember this, that the virus is not a virus which remains suspended in the air. This virus is spread by droplet infection when one person coughs or sneezes, and if the other person is at a distance of 1 meter from that person, and you are not, both of them are not wearing a mask, then the risk of transmission is very high. If one person is wearing a mask and the other is not wearing, it is lesser, and if both are wearing the mask, it is least. So it is not that if they are living in the balcony above you, the virus
virus, if they cough or sneeze, is going to remain suspended in the air. That is not true. The virus, only when they are at a distance of 1 meter from you, if they cough or sneeze with you on a sneeze in front of you, it can come to you. So what I will advise you is that you keep wearing a mask and maintain your distance from them. You are don't go upstairs into their house, and the remaining norms of mask and social distancing you maintain, and don't worry, there is not going to be any spread of infection from them to you. जी, उम्मीद है मलिक आराध्या जी को अपना जवाब मिल गया होगा। कुछ और सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आ रहे हैं। ये सवाल है हरि कृष्ण जी का। उनका कहना है कि वो हार्ट पेशेंट हैं और उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है, पिछले 3.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं। अब वो टेस्ट रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं। क्या वो इसके लिए लैब में जाएं या फिर घर में किसी को बुलाएं? वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 61 साल है। डॉक्टर अनुपम, देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और ये दिक्कत सबको आ रही है जिनको जांच करानी है। तो मेरा मानना है कि पहली चीज कि अगर आप दिल के मरीज हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर 3 महीने पे आपको जांच करानी है। अगर आपकी स्थिति कंट्रोल्ड है तो 3 से 6 महीने पे आराम से आप जांच करा सकते हैं। और अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है, तो मैं आपको यही नसीहत दूंगा कि आप उसी को बरकरार रखिए और कुछ और महीने आप लक्ष्मण रेखा पार नहीं करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में बहुत जरूरी है और आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं जांच कराना जरूरी है, तो मेरा मानना है कि अगर आप घर पे बुला करके जांच करवाएंगे तो एक ही आदमी आएगा जिसके आप संपर्क में आएंगे और वही रिस्क है। तो आप प्रिकॉशन एडिक्वेटली ले सकते हैं। वो मास्क पहन करके आएंगे, आप मास्क पहने रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सिर्फ सैंपलिंग के समय वो पास आएंगे और उसके बाद आप अपने हाथ और जगह सैनिटाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो आप एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे, तो उसमें डेफिनेटली रिस्क ज्यादा रहेगा। मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि ये जो चीज है इस हिसाब से, लेकिन अभी जहां तक है मेरे ख्याल से पोस्टपोन करिए, क्योंकि हार्ट डिजीज अगर है और दिल के मरीजों को 3 महीने में अगर आप घर से बाहर निकले नहीं है तो वैसे भी स्ट्रेन तो पड़ नहीं रहा है, तो दिक्कत कोई ऐसी लग नहीं रही है। अगर आपको दिक्कत है तो जरूर जांच कराएं, या डॉक्टर साहब ने राय दी है तो जरूर जांच कराएं। Right. We have more queries coming in. In fact, on our live stream on Facebook, we have Ashish Mishra who's asking, मेरा सिंगल किडनी है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जुकाम हो रहा है, मैं वीक फील कर रहा हूँ, गुड फील नहीं कर रहा हूँ, चेस्ट पेन है, बॉडी पेन है, किडनी पेन है, मुझे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए क्या मुझे क्या करना चाहिए? बेचैनी सी भी लग रही है। डॉक्टर अनुपम, आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर एक तो ये है कि जिस भी शहर में है वहां टेलीमेडिसिन सुविधा जरूर होगी, तो संपर्क में आए। अगर डॉक्टर साहब बुलाएं तो जरूर जाकर के दिखाएं। जैसा कि बता रहे हैं, अगर जुकाम है तो जुकाम एक साइन है जो कि कायदे से इन्हें कोरोना टेस्टिंग करानी चाहिए। लेकिन अगर मौसमी जुकाम इन्हें हर बार ही होता है, इस मौसम में जैसे बदलता है, आजकल लोग एसी भी यूज कर रहे हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी भी, उमस भी बढ़ गई है, तो इसमें थोड़ा बहुत वैसे ही नाक सवेरे शाम जरा सी आपकी गीली हो जाती है, बहती है, तो वो तो एलर्जिक राइनाइटिस है। उससे अगर ये हर साल होते हैं तो उसके लिए तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कायदे से अगर बुखार लग रहा है, और अगर बुखार नहीं भी है और जुकाम इनको 2-3 दिन लग रहा है, क्योंकि ये किडनी के पेशेंट हैं, तो इन्हें एक बार जांच जरूर करानी चाहिए। तो एक बार टेलीमेडिसिन के संपर्क से या माध्यम से जो है संपर्क में आए अपने नजदीकी जो भी हेल्थ केयर सेंटर है और उनसे बात करके अपॉइंटमेंट लेकर के जरूर दिखाएं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, अशोक हैं महाराष्ट्र से। अशोक, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे को ये पूछना है, एक आदमी को कोरोना वायरस हुआ है और दूसरा आदमी को हुआ नहीं, जब वो दोनों एक मिनट के संपर्क में आते हैं तो उसका जो पहला सिम्टम्स है कब मालूम पड़ता है अपने को? उसमें क्या होता है? सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो 3-4 सिम्टम्स है, इसमें से पहला कौन सा सिम्टम चालू हो जाता है सर? जी, डॉक्टर गीता, आप बताना चाहेंगे कि जब कोई कांटेक्ट में आता है किसी कोरोना पेशेंट के, तो पहले सिम्टम्स क्या नजर आते हैं? देखिए, ऐसा पहला सिम्टम इट्स नॉट डेफिनेट कि पहले क्या होगा, बट इनवेरिएबली थोड़ी सी बॉडी एक पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल किसी भी दूसरे फ्लू की तरह है। तो वही बॉडी एक हो सकती है, बुखार, थोड़ा खांसी, जुकाम हो सकता है, और आगे अगर ये नहीं प्रोग्रेस किया तो यही सिम्टम्स होते हैं। और जो सिम्टम्स ऐड किए गए हैं, एक तो बुखार है, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है,
सेंस ऑफ स्मेल आपकी खत्म हो सकती है, थोड़ा ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट हो सकती है, डायरिया हो सकता है. So these are symptoms which can occur in any other flu also. So ये symptoms कुछ पहले आ सकता है, कुछ बाद में, ऐसा कोई definite chronological order नहीं है, लेकिन ये symptoms आ सकते हैं जब भी आप किसी contact में आए. और जब कि pandemic चल रही है तो ये लगता है कि chances of कोरोना वायरस infection ज्यादा हो सकते हैं, especially अगर आप किसी patient के साथ contact में आए. Right. एक और सवाल आ रहा है डॉक्टर अनुपम, and this is a question which is oft repeated, but just for the benefit of someone who might not know, what is the maximum period COVID-19 virus can stay on any surface? देखिए, मेरा मानना है ये जो है ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है और इसमें कई पेपर आए हैं, कई शोध हुए हैं और जिसमें सबके अलग अलग मत है कि कितना रहता है, क्योंकि कोई भी वातावरण जो है आपके घर जैसा या आपके बाहर वाला नहीं होगा. तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर जिस कमरे में मैं बैठा हूं जो ये बंद है, इसमें अगर 5 मिनट रहता है तो हो सकता है जहां हवा चल रही है वहां 2.5 मिनट रहता हो. तो ये जो सवाल है इम्पोर्टेंट है रिसर्च के माध्यम से, लेकिन हम लोगों के लिए इतना जो जन समुदाय है उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग 3 चीजें जो हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना हाथ धोएं, कोई भी सतह छुएं. हमें यही मानना है पैंडेमिक में, जैसे डॉक्टर गीता कंपानी ने कहा, हमें ये मानना है कि इस समय पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, अगर कोई भी चीज हम छूते हैं, कोई भी सतह हम छूते हैं तो उसके बाद अपने हाथ जरूर धोएं हम, क्योंकि हमें यही मानना है कि सारी सतह जो है वो इन्फेक्टेड है. इस भ्रम में ना रहें कि यहाँ से अगर 5 मिनट पहले कोई नहीं है, कोई भी नहीं था, तो ये सतह जो है अछूई है और इसको हम अच्छी तरीके से छू सकते हैं. इसीलिए कहा जाता है आप घर पहुंचिए तो उसके बाद अपने जो भी है हाथ मुंह पैर जो पहले से चल रहा है इतने सालों से ट्रेडिशन, उसको फॉलो करिए, उसको धोइए. अगर कपड़े बदल सकते हैं तो कपड़े भी धोइए, नहा सकते हैं तो नहा भी लीजिए, जिससे कि जितने भी जर्म, कोई भी, चाहे कोरोना हो चाहे कोई और वायरस हो, वो आपसे अगर शरीर पे लगा हुआ है, कपड़ों पे लगा हुआ है, तो वो बदल जाए और घर के अंदर ना आए. तो वो ज्यादा जरूरी है. इस भ्रम में ना रहिए कि ये 5 मिनट या 4 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे किस सतह पे रहता है. सब सतह अलग है और हर घर की सतह भी अलग ही रहेगी. इस भ्रम में मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए. Right. हाँ, तो better thing would be to not consider, you know, which surface you've touched. Just ensure that you're practicing good hygiene, particularly hand hygiene. We will just take a pause. Just stay with us, Dr. Kampani and Dr. Anupam, because we have an important clarification coming in from the Indian Army right now. They've said that there have been malicious and unsubstantiated accusations in some quarters regarding the status of the facility visited by Prime Minister Narendra Modi during his visit to the General Hospital at Leh on the 3rd of July, which was yesterday. Sudhir, my colleague, is joining me on the phone line for more on this. Sudhir, just tell us why has the Army issued this clarification? What is it trying to convey directly to people here, because we have seen, especially on social media, a lot being said about the PM's visit. बिल्कुल गौतम, देखिए कुछ सोशल मीडिया पर भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारे जवान वहां ठहरे हुए हैं उनको सही तरह से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया जा रहा है. उसमें सोशल मीडिया पर कुछ अनवेरिफाइबल कमेंट्स और चीजें चल रही थी, जिसके मद्देनजर जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है और साफ किया गया है कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. जो ये हॉस्पिटल था उसी को पूरी तरह से जो सारी सुविधाएं हैं वो उनको जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो जो सारे जवान हैं उनको दिया गया था. और ये जो हिस्सा था हॉस्पिटल का, ये क्राइसिस एक्सपेंशन कैपेसिटी का हिस्सा था, जिसमें 100 बेड को इसी में जनरल हॉस्पिटल जो कॉम्प्लेक्स है उसी का हिस्सा था, 100 बेड का. तो ये पूरी तरफ से क्लियर दिया था. और खास बात ये भी आर्मी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो कोविड-19 के चलते जो प्रोटोकॉल थे उनकी वजह से जो जनरल हॉस्पिटल था उसके अंदर जो एक ऑडियो वीडियो हॉल था उसको कन्वर्ट किया गया था और उसको एज ए डेजिग्नेटेड कोविड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया था. तो जिस तरीके की गौतम सोशल मीडिया पे जो अनवेरिफाइबल जो कमेंट किए जा रहे थे उसके मद्देनजर एक पूरी स्थिति को साफ करने के लिए आर्मी की तरफ से पूरी तरफ से क्लियर किया गया है कि जो हॉस्पिटल है उसमें जो हमारे जवान है उनको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो मुहैया कराया जा रहा है.
और खास बात है क्योंकि कोविड-19 के मद्देनजर जो परिस्थितियां बदली हुई हैं, उनमें जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनजर उनका पालन करते हुए बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो हमारे जवान हैं उनको वहां ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा रहा है। गौतम, Right. So there you go. That's the clarification that has come across. Let me just once again, sum up what Sudhir has really told us. The Army has clarified that the facility that the PM visited is indeed the hospital itself, the General Hospital in Leh, and the forces were being given best possible treatment over there, because a lot of people on social media were questioning the kind of treatment they were being given. And it's also been clarified that this facility is part of the crisis expansion capacity of 100 beds and is very much part of the General Hospital complex. COVID-19 protocol had necessitated some wards of the General Hospital to be converted into isolation facilities. Hence, this hall, which otherwise was normally used as a training audio video hall, was converted into a ward ever since the hospital was also designated as a COVID treatment hospital. The injured braves have been kept there since their arrival from Galwan to ensure quarantine from COVID areas. Chief of Army Staff General M.M. Narwane and Army Commander also visited the injured braves at the same location. So all that is being said on social media, all these aspersions being cast, they have become completely null and void and meaningless and even malicious, as the Army said itself. Thanks a lot for joining us, Sudhir, for the moment. Let's return to our doctors and the queries that have been coming in terms of what people have been asking. We've had quite a few interesting ones, really, and पिछला सवाल जो पूछ रहे थे वो सरफेस को लेकर, उसी से जुड़ा एक सवाल है, वही उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरफेस के बारे में आप बता रहे थे, बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारी हो रही हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक सवाल विकास गुप्ता ने पूछा है कि अगर कोई छत पर स्नीज करता है, छींकता है और उसके नीचे से कोई गुजर रहा है, कितना चांस है, अगर छत पे छींकने वाले को कोविड है तो कितने चांसेस हैं कि नीचे से जो गुजर रहा है उस व्यक्ति तक वो पहुंच सकता है? देखिए, अगर ऊपर से कुछ फेंका जाए तो नीचे वाले के सर पे तो गिर ही सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉपलेट्स, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिचुएशन है, और अगर कोई चीज ऊपर से गिरी है, ड्रॉपलेट है जो नीचे गिरी है, तो वो नीचे किसी ना किसी के ऊपर जरूर गिरेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे अगर आप चल रहे हैं तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे गिर सकती है। लेकिन ये है कि वो आप इनहेल कैसे करेंगे, वो आपके नाक के अंदर नहीं जाएगी। भगवान ने जैसी चीजें बनाई हैं तो आपकी आंखें भी पलक सामने या नीचे देखती हैं, नाक के छिद्र भी नीचे हैं, मुंह भी जो है आपका ढका हुआ होता है, वो बाहर नहीं निकल रहा होता है आपके माथे सर से। तो जो भी गिरेगा वो आपके सर पे गिरेगा या कंधों पे गिरेगा। तो अगर आप घर जाकर के अपना हाथ, मुंह, पैर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, और कपड़े बदल लेते हैं तो आपको संक्रमण का खतरा नहीं है। अगर हम उसमें रहेंगे कि कुछ भी चीज हमारे ऊपर कहीं से भी कुछ टपक करके हमें कोई भी संक्रमण आ जाएगा, तो कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा टीबी की बीमारी है, जो कि तो अगर ड्रॉपलेट्स पे है वो तो सर्वाइव भी बहुत देर करती है। आप सतह की बात कर रहे थे अभी कोई जनाब, तो सतह पे टीबी के बैक्टीरिया तो हफ्ते 10 दिन तक भी रह सकते हैं, कोरोना वायरस तो इतनी देर नहीं रहता है फिर भी। तो इसलिए इस सब भ्रम में नहीं पड़िए, इतना ज्यादा खौफ नहीं फैलाइए, और इतना ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है। काफी ज्यादा सक्षम है हम लोग आज की तारीख में। दवाइयां अभी ट्रायल में चल रही हैं, वैक्सीन ट्रायल में चल रही है, लेकिन हम लोग बहुत सक्षम हैं इससे लड़ने के लिए। भारत में बहुत अच्छी तरीके से अभी तैयारी है और बहुत सारे बिस्तर भी हैं, सुविधा भी है, इसलिए दिक्कत इतनी नहीं है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से हमारे पास कीटाणु आकर के आ जाएगा। हाथ धोते रहे। Okay, I hope that answers a lot of questions, not just about someone sneezing from the terrace or something, but we have a caller from Hyderabad, Ratnakar, is joining us. Go ahead, Ratnakar, ask your question. Ratnakar, if you can hear us, ask your question. Yeah, thank you very much for giving me this opportunity. You're welcome. Actually, I was in contact with one of the COVID patients. Then what has happened is, I had some small light fever, like 100.3, Okay. and no body pains at all, no throat infection, nothing. But when recently, on second I've tested, so on third I've been given positive.
even today also, I'm extremely well, no problem at all. But I'm quarantined at home since from 10 days. I was not in contact with anyone. So how many days does it going to stay? And when can I go for the next test? Okay. Dr. Kampani, did you get that question completely? Yeah. So he does not have, he's asymptomatic right now, as I can see, right? He doesn't have any fever or cough right now. He did have fever. He had, but the present guidelines that have come, that if in asymptomatic cases and mild cases, like he seems to be just a mild infection of fever, and because he was home isolated, so if 3 days go by and he doesn't have fever, and 10 days after the onset of symptoms, he can stop home isolation. These are the latest guidelines. So the isolation period is only required for 10 days from the onset of symptoms, or 3 days after the fever has subsided. So after that, there is no need of repeat testing. In asymptomatic, mild and moderate cases, we are not doing repeat testing to see whether it is negative or not. These are the latest guidelines. So there is no need of repeat testing, and after 10 days, he can, for another 7 days, after 10 days, no need of isolation. For another 7 days, he just has to be more careful in seeing to it that even people in the house are maintaining social distance, and he is also wearing a mask, and others in the house are also wearing a mask. जी राइट डॉक्टर अनुपम, एक और सवाल है फेसबुक के जरिए हमारे पास आया है। विजय लक्ष्मी जानना चाहती हैं कि आई एम RA पॉजिटिव, पेशेंट फॉर लास्ट 10 years, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए टू अवॉइड कोविड-19? एनी स्पेशल डाइट एज वेल? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं या जो भी मेडिकेशंस मिल रही होती हैं, थोड़ा सा वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, इसलिए थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन प्रिकॉशंस वही रहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रहिए, 1 से 2 मीटर दूर रहिए, सबसे लोगों को दूर रखिए अपने से, अपना मास्क पहनिए और अपना हाथ निरंतर धोते रहिए। अगर कोई भी सतह छुए तो उसके बाद हाथ जरूर धोएं। तो प्रिकॉशंस यही रहेंगे। डाइट अपनी जैसी खुराक खा रहे हैं, अच्छी खुराक खाइए। एक फल का सेवन अगर कर सकते हैं तो रोज जरूर करिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स होते हैं, तो वो फायदेमंद रहेंगे। अगर कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारी रहती है या वजन ज्यादा है, तो उसका ध्यान रखें। लेकिन इसका मतलब एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है तो आपने को ये नहीं समझिए कि आप ज्यादा रिस्क पे हैं। ज्यादा रिस्क पे होने के साथ साथ एक फायदा भी है कि जो दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको कही जा रही है कि वो कोविड में फायदा करती है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कई मरीजों को ये दवा चल रही होती है। तो एक आपको ऑलरेडी एक तरीके की प्रोफिलैक्टिक दवा चल रही है, जिससे आप शायद ग्रस्त नहीं होंगे कोविड से। लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी दवाएं नहीं चल रही होती हैं, जब तक कि प्रेडनिसोन या स्टेरॉइड ना चल रहा हो आपको, तो वो ऐसी दवा नहीं है कि जो आपके इम्यून सिस्टम को शिथिल कर दें। वो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करती हैं और थोड़ा उन्हें स्ट्रॉन्ग ही बनाती हैं, क्योंकि बीमारी रेगुलेटेड रहती है। Okay, we have another question coming in from Rajkumar Singhi. He's asking, my wife is 55 years old and she has heart enlargement for the last 2 years, and she was scheduled for a routine checkup in June but could not visit the doctor from whom she is treated, as the doctor is 200 kilometers away. How can she get tests prescribed by the doctor, or should she go to the lab, the testing center herself? Dr. Kampani, I believe that tele-consulting could be a solution here, but we don't know specifically whether this doctor that she's been consulting 200 kilometers away has that facility or not. See, if she has a dilated heart, most likely, as I can figure out, maybe it's a dilated cardiomyopathy. So, unless कुछ खास कुछ alteration हो रहा है, उनको कोई अगर एक्स्ट्रा नया सिम्टम अपीयर नहीं हुआ है, तो जो मेडिसिन उनकी चल रही हैं वही चलती रहेंगी। तो उनको बस ये करना है कि अगर वो इतनी दूर जाने की अभी जरूरत नहीं है इस एपिडेमिक में, और अगर वो स्टेबल चल रही हैं तो जो उनकी पहले से दवाइयाँ चल रही हैं उनको रेगुलरली चलाती रहें और कुछ उनमें ऑल्टर नहीं करें। अगर अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रही हैं, उनमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। Right. Okay. डॉक्टर जी,
गो अहेड जी डॉक्टर अनुपम, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, काफ़ी लोगों ने उसकी चर्चा भी करते रहते हैं, अलग अलग सिम्टम्स को लेकर बहुत से सिम्टम्स का जिक्र करते हैं, बहुत से फ्लू के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक कहीं पर बहस एक चल रही है कि जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला जाता है, अगर किसी को बुखार है या ज़ुकाम है, उस दौरान सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल अगर चला जाता है, ये कितना बड़ा सिम्टम होता है कोविड-19 का? देखिए, आपके जहन में बहुत ही तीव्र सवाल आया है और ये बहुत ही उचित सवाल भी है। आमतौर पे जो भी जुकाम होते हैं या नजला होता है, उसमें सेंस ऑफ स्मेल फिर भी कभी कभार चली जाती है जब आप में नाक में भरापन लगता है या नेजल स्टफीनेस जिसे हम कहते हैं वो रहता है तो। लेकिन लॉस ऑफ स्मेल जो है इस एपिडेमिक, इस महामारी का, पैंडेमिक का एक बहुत ही एक अछूता हिस्सा है, मैं कहूंगा बिल्कुल ही अनोखा हिस्सा है। और लॉस ऑफ टेस्ट, ये दो चीजें हैं। कई मरीजों को हमने देखा है जिनको बुखार भी नहीं है लेकिन सेंस ऑफ स्मेल चला गया है या टेस्ट सेंसेशन बिल्कुल चली गई है। ये अकेले में ही ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं कहूंगा 99% आपको ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट कोरोना से ही ग्रस्त है। तो ये जो आपके जहन में सवाल आया है, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये क्लिनिशियंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये सिम्टम्स हैं तो virtually you are sure that yes, these patients are having corona infection in the present pandemic, rather than other viral infections or typhoid, malaria, dengue, anything like that. We have another viewer who's asking a question, Dr. Kampani. He's asking that he's 32 years old and उनको 4 साल से asthma है लेकिन अभी कंट्रोल में है, और वो ये कह रहे हैं कि वो पुलिस में भी काम करते हैं और खूब एक्सरसाइज भी करते हैं, तो किस तरह के एहतियात उनको बरतने चाहिए? जो उनको प्रिकॉशंस लेनी है वो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं वही लेनी है। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनके फेफड़ों की स्थिति बहुत अच्छी होगी एंड हिज फिजिकल फिटनेस लेवल्स विल आल्सो बी गुड। सो जो बाकी हम एडवोकेट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, वही उनको बरतने हैं और कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। Right. Okay, and we have another query coming in from another kind of patient, Dr. Anupam. अब ये कह रहे हैं कि I would like to ask question related to gallbladder stone, which is 3.6 millimeters. Earlier it was 4, now it's shrunk to 3.6. But there is pain that is there in the right upper abdomen, especially at night. अब ये आई डोंट नो कहाँ से ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये होम्योपैथी से क्योरेबल है कि हमें सर्जरी करानी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। और अगर हम सर्जरी कराते हैं तो उसके लिए क्या डू वी हैव टू अंडरगो टेस्टिंग फॉर कोविड-19 फर्स्ट? हाँ, देखिए ऐसा है कि होम्योपैथी के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सक्षम हूँ सिर्फ एलोपैथी के लिए। और ये पत्थर जो है कोविड से इसका कोई नाता नहीं है, लेकिन ये हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं हमारी पद्धति में डिसॉल्व यूजुअली नहीं होते हैं और 3.6 और 4 मिलीमीटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरा मानना है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड से है और अल्ट्रासाउंड अलग अलग लोग अलग अलग मशीन पे थोड़ा बहुत ये कुछ मिलीमीटर का फर्क हो सकता है। लेकिन जिस भी स्थिति में है, अगर आपको दिक्कत है तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। और मेरा जो आपके लिए, मरीज के लिए जो राय है, मैं यही कहूंगा कि सर्जन भी आपको एडवाइस देंगे, लेकिन मैं खुद कहूंगा कि अगर सर्जरी करानी है तो उससे पहले कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि हमने जो देखा है अभी जितना भी महामारी में पिछले 3-4 महीने में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस अनुभव हुआ है, उसमें हमने देखा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी है तो उनमें जटिलताएं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज्यादा रही हैं। तो इसलिए अगर सर्जरी पोस्टपोन की जा सकती है तो 2-3 महीने मैं एडवाइस करूंगा कि पोस्टपोन कर दी जाए, और अगर नहीं है तो फिर करानी है। इमरजेंसी में तो कोई हम सर्जरी पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा रुक जाए तो बेहतर है। जी, और हमारे साथ एक कॉलर है, मल्लिका मुंबई से जुड़ गई हमारे साथ। मल्लिका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं आज ट्रेवल कर रही हूँ रतलाम और मेरी टिकट है सेकंड एसी की, तो क्या सेकंड एसी में ट्रेवल करना जरा रिस्की है एसी, और मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए? डॉक्टर गीता?
एसी में थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली बढ़ जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप जितनी देर हैं मास्क डाल के रखिए और अपने हाथों की सैनिटाइजेशन का बड़ा ख्याल रखिए। खासकर जो चीजें आप कोशिश करिए कि आसपास की जो रेलिंग है और जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कम से कम छूइए, और जब भी किसी और चीज को छूते हैं तो अपने हाथ को कम से कम 30 सेकंड के लिए साबुन से अच्छी तरह आगे से और पीछे से अच्छी तरह धो लीजिए, और उसके बाद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल है उससे आप सैनिटाइज कर लीजिए अपने हाथों को। तो और दूसरे लोगों से भी आप कोशिश करिए 1 मीटर एटलीस्ट की डिस्टेंस मेंटेन करिए आप सोशल डिस्टेंसिंग में। अब एक सवाल और दिलचस्प आया है डॉक्टर अनुपम। someone is asking that apart from I'm presuming that the person is asking कि मास्क पहनने के अलावा फेस शील्ड पहनना कितना उपयोगी होगा, खासकर when you have to go to the market, interact with shopkeepers and others who might themselves not be wearing पहले तो या शायद मास्क नहीं पहना है या मास्क ठीक से नहीं पहना है। बिल्कुल ठीक बात है, और मेरा मानना है कि ये बहुत ही उचित सवाल है। इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप मास्क पहनिए, कपड़ा बांधिए, फेस शील्ड रखिए। इनमें से एक या कई चीजें जो भी है ये एक बैरियर का काम करते हैं। एक जो है ये विघ्न उत्पन्न करते हैं कि आपके मुंह से अगर कोई चीज बाहर जा रही है, कोई भी बूंद ड्रॉपलेट बाहर जा रही है तो वो रुक जाती है इससे, और अगर बाहर से कोई छींकता है, खांसता है तो वो भी आपके अंदर नहीं जाती है। तो अगर आपने एक से ज्यादा प्रोटेक्शन रखे हुए हैं तो डेफिनेटली अगर 90% है पहले तो 95% हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि अगर आप मास्क पहने हैं तो उसके ऊपर अगर आप पहन लेंगे तो एक और प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सामने वाला खासतौर से नहीं ध्यान दे रहा है तो जैसा डॉक्टर गीता ने कहा, अगर दोनों लोग पूरा ध्यान रखेंगे, अगर दुकानदार वो पहना हुआ है मास्क अच्छे तरीके से, अगर आपने भी मास्क अच्छे तरीके से पहना हुआ है, तो चांस बहुत कम है कि संक्रमण एक आदमी से दूसरे में पहुंचेगा। बिल्कुल, तो बचाव इसके खिलाफ बचाव बेहद अहम है और जितना बचाव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बचाव कुछ लोग नहीं करते और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है। सवाल यह है कि ये प्रकाश गुप्ता जी ने पूछा है कि मॉर्निंग वॉकर्स अक्सर देखा जाता है कि मास्क पहनकर नहीं निकलते हैं। उनका ये कहना है कि सुबह सुबह हवा में कोरोना नहीं होता है। कितना सही है या कितना गलत है ये? ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में कोरोना नहीं होता है और शाम को होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप जब वॉक के लिए मॉर्निंग में जा रहे हैं, आप मास्क जरूर पहन के जाइए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करिए। ये बिल्कुल गलत भ्रम है कि मॉर्निंग में कोरोना नहीं होता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि कोरोना हवा में नहीं होता है, कोरोना मरीज से आता है। तो ये ध्यान रखें कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको दे सकता है। अगर आप साथ में किसी के साथ चल फिर रहे हैं तो वही आपको दे करके जाएगा। किसी के मुंह पे नहीं लिखा हुआ है कि वो कोरोना पीड़ित है। इसलिए प्रिकॉशन हमेशा रखना है, घर या घर से बाहर। डॉक्टर गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। एक और सवाल आया है कि कोई अब ये अपनी राय मेरे ख्याल से ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं, सवाल कम पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी को खांसी होती है तो क्या उनको कहा जाए कि वो चॉकलेट खाएं, क्योंकि अगर वो चॉकलेट खाते रहेंगे तो उनका स्ट्रेस भी रिलीफ, उनको स्ट्रेस भी कम रहेगा और इससे उनका गला भी तर रहेगा और शायद बीमारी दूर रहेगी। ऐसा कुछ उपयोगी साबित हो सकता है डॉक्टर अनुपम? देखिए ऐसा है, चॉकलेट तो अगर खांसी नहीं है तो भी खा सकते हैं, अगर डायबिटीज नहीं है तो। चॉकलेट खांसी से कोई नाता नहीं है। ये तो मतलब मेरा जितना ज्ञान है और जितनी रिसर्च है उसके हिसाब से चॉकलेट खाने से खांसी में आराम या नहीं आना किसी एक आदमी को हो सकता है, लेकिन जनरली आज तक हमने कभी नहीं सुना कि चॉकलेट खाना हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते। हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस पे नहीं किया, ना डॉक्टर गीता ने ना हमने, कि किसी को खांसी आ रही तो चॉकलेट एडवाइस करें जी। और इसी के साथ एक और चीज अहम लोग फॉलो करते हैं, वो है पानी। पानी ज्यादा पीना कितना अहम है जिनको कोरोना नहीं है या जो इससे बचना चाहते हैं? पानी पीना या ताजा पानी पीना, गर्म पानी पीना, हल्का गर्म पानी पीना? पानी पीना तो डेफिनेटली बहुत उपयोगी है। इट इज गुड टू कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, खासकर आजकल की जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट चल रही है जिसमें इतना बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है,
तो आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, तो ये बहुत जरूरी है। ज्यादा फ्रिज का बहुत ठंडा पानी मत पीजिए, लेकिन गर्म करके पीने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप रूम टेम्परेचर वाला पानी पीजिए और अधिक पानी पीजिए। अगर अनलेस आपको कोई गुर्दों की तकलीफ है और आप पानी को यूरिन में नहीं निकाल पा रहे हैं और बॉडी में वो पानी एक्यूमुलेट होता है, वो एक अलग ही स्थिति हो जाती है। बिल्कुल उसमें हम वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं, पर लेकिन अगर ऐसी कोई आपको बीमारी नहीं है, आप खूब पानी पीजिए। इट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, इट क्लींसेस द बॉडी। एंड अगर आपकी यूरिन आउटपुट अच्छी है तो आप जितना पानी पिएंगे, जो एक्सेस वाटर है यूरिन में निकल जाएगा। इट इज गुड टू ड्रिंक adequate amount of water. We have another caller who's joined us, Dr. Anupam. Go ahead, Sanjay, ask your question. You're from Bihar, I presume. जी हेलो। हाँ, सवाल कीजिए संजय जी, मास्क के बारे में हमको जानकारी लेना है कि सर ये किस तरह का मास्क। कुछ लोग बोलते हैं रुमाल आप पहन लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप मास्क पहनिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप गमछा बांध लीजिए, इससे आप प्रोटेक्ट रहिएगा। तो एक्चुअली सही क्या है? देखिए, जन समुदाय के लिए अपना मुंह और नाक ढका होना सबसे जरूरी है। उसके लिए कोई भी माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बशर्ते ही गमछा बांधिए, रुमाल बांधिए, या आप मास्क खरीद करके, क्लॉथ मास्क भी आते हैं जो घर में बना सकते हैं या मार्केट में मिल रहे हैं, या आप एक सर्जिकल मास्क जो कि डॉक्टर्स लोग पहनते हैं वो भी पहन सकते हैं। सिर्फ एक मुद्दा है कि वो मुंह और नाक ढका होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि है मास्क के ऊपर या कपड़ा बांध लिया आपने या गमछा बांध दिया, उसके ऊपर आपने फेस शील्ड लगा ली। तो सिर्फ ये है कि वो मुंह ढका होना चाहिए, नाक ढकी होनी चाहिए। आपके अंदर का संक्रमण बाहर ना जाए और बाहर कोई छींक दे तो उसका संक्रमण आपके अंदर नहीं जाए, ये जरूरी है। Right. And as far as masks go, Dr. Kampani, people also have these worries about wearing masks for too long, and the nature of the mask itself, whether it's an N95 one or a normal 3-ply one, or just made out of cloth which may have or may not have multiple layers. Is there any kind of an advisory on that account? If you're wearing a mask, what kind of an activity should you be wearing it for? What shouldn't you be wearing it for, and for how long? See, wearing of mask whenever you step out of the house is very necessary, unless you have a COVID patient at home. If you have a COVID patient at home, then you have to wear it all the while at home also, and the patient also has to wear it. Otherwise, just a normal cloth mask when you go out is adequate for the general public, and it should be mandatory for everyone who is stepping out of the house. But for healthcare workers who are dealing with patients, we are advising N95 mask. N95 mask is not required for the general public. It is mainly for healthcare workers who are dealing with patients, because they don't know which patient is a COVID patient or who is not a COVID patient. So otherwise the general public is not supposed to be wearing, but wearing of mask for everybody, ordinary cloth mask, is mandatory whenever they go out of the house. And what about the duration, especially if you're undertaking some strenuous exercise? A lot of people have started running in the open because it's now allowed. A lot of people go cycling around as well. See, ideally, when you go cycling as well as when you are going running, you are supposed to wear a mask all the while. You can wear a slightly loose mask which is covering your nose and mouth, and you can maintain a distance. Sometimes you can just, when you are not in vicinity of anybody, say at a distance of at least 1 meter from other people, you can, if you are feeling very, the mask is suffocating you, you can just remove the mask for some time, but not if you are running parallel with somebody. That should be avoided, so that basically the thing is that you should, the mask is supposed to prevent infection from spreading from one person to the other. And as I said earlier, it is not a droplet which is remaining suspended in the air. You need we should be very clear that the distance of 1 meter to 2 meters is required between two individuals, and the contact has to be face to face for at least 5 minutes. Usually it is 15 minutes, but even if we say it is 5 minutes. So if you are maintaining a distance and running, and the other person is also healthy, usually it is not going to happen, but precaution is always better than cure. Dr. Anupam, would you like to add something to that?
नहीं, मेरे ख्याल से मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर जो है मास्क आपका, सिर्फ दिक्कत ये है कि जैसे आप कह रहे हैं अगर आजकल उमस बहुत है तो गीला हो जाता है, तो आमतौर पे आप कोई भी कपड़ा या कुछ बांधे हैं, जैसे मास्क हैं हम लोग पहनते हैं 4-6 घंटे आमतौर पे चलते हैं, लेकिन हाँ अगर वेट हो जाए, गीला ज्यादा हो जाए पसीने की वजह से या बोलने की वजह से, तो उसको फिर बदल लें। ये एक हिदायत रहेगी मेरे ख्याल से। बाकी तो जैसा मैडम ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। जी बिल्कुल, तो मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। जितनी सतर्कता बरतेंगे उतना दूर रहेंगे कोविड से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता कंपानी, डॉक्टर अनुपम प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। यकीनन हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा आपने जिस तरीके से इन सवालों के जवाब दिए, और हमारी भी नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। गौतम, Definitely, and that is what this is all about, because this is a challenge that's been around for a while now. The first lockdown was imposed almost 102 days ago, and looks like the disease is here to stay for a while as well, unless we come up with that vaccine that is under development. That is another vital question that has kept on cropping up in people's minds, and people need an answer to that as well. And we will probe those queries as well in our subsequent shows. For now, that's it as far as this particular edition of Doctors Speak is concerned. Thank you for joining us, doctors, and thank you, our viewers, for being with us as well. नमस्कार।